Hello everyone, welcome to Economics Fundamentals. During the previous class, we have discussed the Indian economy during 1950 to 1990. Now it's time to move on towards the economic reforms since 1991. Now, as you know, that Indian have adopted the mixed economic pattern, which was the combination of capitalistic as well as socialistic economic structure. But till 1990, when 7 5-year planning have been completed so far, and after the completion of 7 5-year planning, it was evident that the Indian economy did not grow at much up to that level which was expected for. So first the question arises, why India adopted the economic reforms, or what is called as new economic policy, which came into effect from 1991. Why India has adopted it? India has adopted it due to the failures or due to the shortcomings of planning era. There was the heavy restriction on industrial sectors, especially on private enterprises. They have to require permission from the government if they are going to start business, they are going to close the business, or they are going to produce certain goods and services. So various kinds of restrictions were there. We have dealt with the Green Revolution and its shortcomings so far. So along with all these problems, there was a major problem with the Indian economy, and which was the shortage of foreign reserve. The foreign reserve, which was exclusively kept for import, because we were compelled to import the petroleum and some other essential goods. So that reserve came down severely. In fact, we had only to manage our BOP crisis up to 14 days. So India approached IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, which is also known as World Bank most popularly nowadays, and IMF, International Monetary Fund, for seeking loan to cope up with this BOP crisis, or what was going on with Indian economy. Ultimately, India got $7 billion from these international monetary institutions. But in return to that, the World Bank expected India to liberalize its trade policy, to remove all the trade barriers. And yes, that is why India had adopted this economic policy. Dear learners, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको पता है. इसमें सोशलिस्ट यानी सामाजिक और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण विद्यमान हैं. लेकिन बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई प्लानिंग एरा में जितना उसे करना था. दूसरे, पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादातर लॉसेस में जा रहे थे, और इंडिया की बहुत सारी जो फंड्स हैं वो जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, इनमें ही इनको ही डील करने में चला जा रहा था. अगर कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे भी तो वो एकदम से रिटर्न देने वाले नहीं, जैसे नेशनल डिफेंस इक्विपमेंट्स एटसेट्रा. तो इस वजह से, और उसके बाद जो बीओपी क्राइस हमारे सामने आया कि 14 दिन का ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था, उन सब से बाहर निकलने के लिए उस टाइम पे की मौजूदा सरकार, जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, India approached
द वर्ल्ड बैंक, IBRD विच इज़ पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, और IMF, वहाँ से $7 बिलियन का लोन मिला, लेकिन इस शर्त पर कि हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें और अपने ट्रेड को लिबरलाइज कर दें। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनके दो पर्पस थे, दो मेजर्स हमने लिए। एक हुआ स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दो मेजर लिए गए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज। स्टेबलाइजेशन मेजर्स वाज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म ओनली। इसमें क्या था, जो BOP क्राइसिस, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन था, उस पर फोकस किया गया, जबकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज के अंतर्गत जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो डिसाइड किए गए। इसमें हमने पॉलिसीज ली लाइक liberalization, then privatization, and then globalization. Now we will deal these problems, or now we will deal these features of the structural reforms policies one by one. First, you can pause the video to note it down. Then I will start from liberalization first. So, learners, we are starting with the liberalization under the policies of LPG, which were introduced in new economic policy, or which were the essential part of new economic policy since 1991. Liberalization means freeing up the Indian businesses and industries from unnecessary restrictions and controls. As I have written over here, from unnecessary control and restrictions, because earlier we were having the restrictions in the form of tariff and quotas, because we were following the policy of protectionism. Why we were following the policy of protectionism? As I have also mentioned during my previous classes, that on the eve of independence, Indian industries were like an infant baby. So that as the infant baby required lots of protection, similarly the Indian industries required so. So that is why Indian government imposed the quantitative restrictions. So the government imposed both tariff as well as non-tariff barriers. But what liberalization did? The liberalization removed these restrictions and controls, and gradually the role of private sectors was increased. This we will also discuss in the next part, which is known as privatization. So first, as far as the essential improvements are taken into consideration, there was the first improvement was deregulation of industrial sector. जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर अपने ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, या इवन बिजनेस को क्लोज करने के लिए भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती थी। तो ये, और दूसरी चीज़ है, लाइसेंसिंग जो है वो लगभग समाप्त कर दी गई, एक्सेप्ट कुछ हजार्डियस प्रोडक्ट्स थे, केमिकल हजार्डियस प्रोडक्ट्स, उनको छोड़ करके, टोबैको, अल्कोहल, इस तरह की जो चीज़ें थी उनको छोड़ करके बाकी जगहों पर लाइसेंसिंग समाप्त हो गई। दूसरे, प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो बढ़ा दिया गया। ठीक, फिर जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए धीरे धीरे। सेकंड, आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ itself, the RBI, the Reserve Bank of India, or which is known as Central Bank or Central Monetary Authority of India, जब से RBI की स्थापना हुई, RBI acted as a regulator of financial sector, but gradually RBI को regulator से facilitator में बदल दिया गया।
जैसे आरबीआई सीआरआर डिसाइड करता है जो कमर्शियल बैंक्स को उसके पास कंपलसरी रखना पड़ता है, एसएलआर डिसाइड करता है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, वो बैंक रेट डिसाइड करता है जिस पर कमर्शियल बैंक्स लोन ले सकते हैं। बाद में क्या हुआ, बहुत सारी उसकी जो है वो गाइडलाइंस होती हैं विच ऑल द बैंक्स हैव टू फॉलो। अब इसमें जब रिफॉर्म्स किया गया तो क्या किया गया कि अगर कोई ब्रांच, अगर कोई बैंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, सही से पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, तो वो अपनी ब्रांच विदाउट प्रायर परमिशन एक्सटेंड कर सकता है, दूसरी ब्रांचेस भी खोल सकता है, विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक हैं उनको भी इजाज़त दे दी गई। अब प्राइवेट बैंक्स जो नेशनल भी थे, इंटरनेशनल भी थे, वो भी अब मार्केट में आने लगे, जिससे बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो इम्प्रूव हुई। लेकिन आरबीआई को कुछ मैनेजरियल कैपेसिटी अभी उसके पास रही, जिससे कि वो जो कस्टमर्स हैं उनके बेनिफिट का भी ध्यान रखा जा सके, कमर्शियल बैंक्स अपनी मनमानी ना कर सकें। नेक्स्ट है हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। पहले जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत हैवी रेट्स टैक्सेशन लगता था, इधर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, इनके रेट्स बड़े हाई थे। कॉरपोरेशन टैक्स जो इंटरप्राइजेस पर लगता है, बिजनेसमैन जो देते हैं, और पर्सनल इनकम टैक्स जैसे कि आप और हम देते हैं, जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं। इन सभी टैक्स रेट्स को घटाया गया। घटाने का मकसद था कि जो टैक्स इवेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, जो कर की चोरी है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो 2016 में भारत सरकार ने जीएसटी एक्ट बनाया, जो जुलाई 2017 से लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सेप्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ टैक्सेस को छोड़ करके, इसने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इससे बाहर हैं, बाकी सभी चीज़ों को इसमें समावेश कर दिया गया। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास में, जीएसटी के बारे में। तो ये भी टैक्स रिफॉर्म्स का एक रूप है। उसके बाद हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पर। फॉरेन एक्सचेंज, आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब बात करें अगर 1991 की, तो उस वक्त हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हार्डली 6 बिलियन था, जो बढ़कर के 14-15 में 321 बिलियन हो गया। अगर आप बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास उस वक्त में केवल 100 मिलियन यूएस डॉलर था, जो कि बढ़कर के 16-17 आते आते 36 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में हम आपने डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में मैंने बताया था आपको, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो हम फिक्स से मैनेज पर आ गए। फिर जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन था दैट वाज रिमूव्ड, बट मेजर फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए सम sort of intervention from RBI was there. It is still persist. It is known as the managed floating, or what is called as dirty floating. This we have discussed in previous classes as well. Then trade and investment policy reforms. अब देखिए, हमने अपने ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। रेस्ट्रिक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर्स, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ में हमने हैवी इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की हुई थी, जिससे इंपोर्ट जो है वो लिमिटेड हो, एक्सपोर्ट को हमने लिमिटेड किया हुआ था। लेकिन जब हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, यहाँ तक कि 2001 में तो कंप्लीट मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स पर और आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर कंप्लीट जो रेस्ट्रिक्शंस था वो रिमूव कर दिया गया उनके इंपोर्ट्स पर। और एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल, क्लोथिंग्स पर हमने पूरी तरह से अपने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। ये और बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी भी वहाँ पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पर लगा रखे हैं, जो कि नाजायज़ है। इसीलिए बार बार सवाल उठता है कि WTO जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को फेवर करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों का ध्यान नहीं रखता है।
तो ये आपका लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हमने जो मेजर सुधार किए वो हैं. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट डाउन एंड देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज प्राइवेटाइजेशन. As far as the privatization is concerned, it means giving greater role to the private sector in the nation building process. It means the more opportunities for private sector was there. So जैसे ही नए आर्थिक सुधार शुरू किए गए, उनमें निजी क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा दिया गया. निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और गवर्नमेंट कंपनीज कुड बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट इन टू वेज. फर्स्ट, बाय रिमूविंग द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, like government companies converted into private by withdrawal of government from ownership and by outright sale of PSUs. By withdrawal of government from ownership or management means तो गवर्नमेंट उसको जो है पूरी तरीके से छोड़ दे. और दूसरा है आउटराइट सेल. इसमें गवर्नमेंट ओनरशिप और मैनेजमेंट छोड़ करके ऑटोनोमी दे दे, जैसे हम ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन है जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की. बहुत सारी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक सेल है, भेल है, जो नवरत्नाज महारत्नाज हैं, इसमें मैं भी बताता हूँ आप लोगों को. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो उनके अपने मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं, रनिंग डिसीजंस हैं, दे कैन टेक देयर ओन. दूसरा है आपका आउटराइट सेल ऑफ PSUs विच इज़ कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके भी जो है वो प्राइवेटाइज करती है. जैसे 91 में टारगेट किया गया था कि भाई हम 2500 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि वो 3040 करोड़ हो गया. 2014-15 में टारगेट किया गया कि 56,000 का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 30,400 ही हो पाया. 30,000 समथिंग उसमें मिल पाया, जो टारगेट से कम था. अब डिसइन्वेस्टमेंट और ये जो मैनेजरियल जो कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट छोड़ती है. क्यों? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. और पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें कैटेगराइज करती है. कैसे कैटेगराइज करती है? दे हैव बीन कैटेगराइज इनटू महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास. ओके, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा. देखिए, महारत्नास जो है वो इसकी सबसे ऊंची कैटेगरी है. इनको परफॉर्मेंस के आधार पर इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है. जितने भी PSUs हैं, तो महारत्नास में आपका आता है जैसे IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल. ये आपका महारत्नास है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड जनरेशन ऑफ रेवेन्यू. दूसरा आपका है इसमें सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. पहले ये नवरत्नास में था, परफॉर्मेंस के आधार पे अब ये महारत्नास हो गया है. फिर आपके नवरत्नास में आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एंड MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. फिर मिनी रत्नास में आप देखें तो मिनी रत्नास में BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI. सो इस तरीके से ये कुछ PSUs हैं जिन्हें इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है. प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन बढ़ाने से सरकार की ये मंशा होती है कि किसी भी सेक्टर को अगर आप प्राइवेटाइज कर दें तो उसका मैनेजमेंट सुधर जाता है, वहाँ पर वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है. दूसरे जो फंड्स है, जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, उनको भी वो अट्रैक्ट करता है.
प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।